गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, मेरा नाम वैशाली है और आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम को लेकर आई हूँ इंटरनेशनल विमेंस डे पर। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर युवाक्षी जुनेजा। शी इज़ अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ वेरियस मेडिकल सोसाइटीज एंड करंटली एसोसिएटेड विद अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल चिराग एनक्लेव। तो मैम, जो मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि रोज़मर्रा के जीवन में आपको महिलाओं के लिए कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको आपकी प्रैक्टिस में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं? मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूं उससे पहले आई वुड गुड मॉर्निंग एंड आई वुड लाइक टू offer my heartiest congratulations to all the women on this occasion of International Women's Day. Now Vishali, coming to your question, कि मैं रोज़मर्रा के OPDs में या अपने एक्सपीरियंस में क्या women related problems ज़्यादा देखती हूँ. So of course these days, as we are probably all aware, we do see increasing problem of polycystic ovarian syndrome in our young girls and young women. That is really very very common. Almost हम अब ये मानते हैं कि एक पैंडमिक की तरह हो गया है और OPD में 1 या 2 10 में से यंग लड़कियां या यंग विमेन इस प्रॉब्लम के संग हम देखते हैं. Second very common problem that we see these days in again younger women who are still in their reproductive age group is the problem of endometriosis, which also is a very chronic and a very debilitating condition. Though it's not a condition which is cancerous, but it is a very painful condition which affects the even the daily activity of these women, and they do require very close medical attention and sometimes even surgeries. The third common problem that again cancer awareness के साथ हम सबको पता है, breast cancer बहुत बढ़ता जा रहा है और हम ये सिर्फ older women में नहीं बड़ी young age में भी देख रहे हैं, and it is almost again 1 in 10 women these days are facing a problem of ovarian cancer. With the kind of lifestyle that we have, with increased stress and pressure, infertility again is on a rise, and increasingly since women are getting married late, they are starting their families late, and additional stress factors, infertility की समस्या भी हम अब पहले से कहीं ज़्यादा देख रहे हैं. वाओ, तो ऑब्वियसली मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से महिलाओं में कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज एंड इनफर्टिलिटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा आज महिलाएं इनसे सफ़र करती हैं. तो मैम, मेरा एक सवाल है कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल हमें देखने को मिलती है. क्या आप हमें कुछ गाइड कर पाएंगे कि क्या स्टेप्स फीमेल्स को फॉलो करने चाहिए कि इसको ये अवॉइड कर सकें? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसा आपने कहा कॉमनली हम ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, और वैसे भी विमेन में थोड़ा कंपेयर टू मैन यूरिनरी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है इन्फेक्शन की, क्योंकि विमेन हैव अ शॉर्टर यूरिनरी पैसेज जिसमें इन्फेक्शन ज़्यादा इजीली हो सकता है, और ऑल्सो प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन अगेन एक ज़्यादा कॉमन समस्या है. यूज़ ऑफ first and foremost for preventing any infection, be it urinary tract infection or any other infection, सबसे पहली चीज़ है hygiene. So hygiene is very very important for young girls, especially school going girls, as well as girls who are going to, or women who are going to work, because these are the places where we end up using we end up using public toilets. So therefore hygiene is very very important. और इस रिगार्ड में मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा हमें खुद ही प्रिकॉशन लेनी है. एक्चुअली अगर हम सोच के देखें तो जो हमारे इंडियन टॉयलेट्स हैं, दे आर, आई ऑलवेज टेल ऑल माई विमेन इफ़ दे आर ट्रैवलिंग और इफ़ दे आर, आई ऑलवेज आस्क देम व्हाट काइंड ऑफ अ टॉयलेट. इंडियन टॉयलेट्स आर डेफिनेटली मोर हाइजीनिक टू यूज़ compared to Western toilets, and I do tell all the women that encounter this problem that if they have an Indian toilet at workplace or on their travel, it is better to use that than a Western toilets. Yes. That is one thing. Second, a very easy thing to do is to carry P-Safe. Whenever you are traveling or even going to work, it's not something very difficult. आप P-Safe carry करिए. आप टॉयलेट सीट पे P-Safe का इस्तेमाल करके, वाइप करके आप टॉयलेट सीट यूज़ कर सकती हैं. ट्रैवल में आजकल बहुत इजीली डिस्पोजेबल टॉयलेट कवर सीट्स मिलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज अगर यंग हैं और उन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो इफ़ दे काइंड ऑफ रिमेन सेमी सीटेड, दैट्स ऑल्सो गुड, एंड ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ हाइजीन इज़ वेरी परफेक्ट.
तो मैम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हाइजीन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और इसके ही थ्रू आप अपने आप को यूटीआई से बचा सकते हैं. सो मैम, माय थर्ड क्वेश्चन इज़, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं भी जब फीमेल से मिलती हूँ ये चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ने लगी है. एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड, पीसीओडी एंड अदर हार्मोनल इश्यूज. तो व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस और किस तरीके से महिलाएं उन चीज़ों को अवॉइड कर सकती? देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस विमेन की लाइफ में मेनली हम 2 स्टेजेस पे देखते हैं. एक, अर्लियर इन लाइफ व्हेन दे आर जस्ट अटेनिंग प्यूबर्टी. बाय प्यूबर्टी आई मीन द टाइम व्हेन दे आर स्टार्टिंग विद देयर पीरियड्स, or in their early teens and adolescent age group. That's the time when they can have hormonal imbalance issues, which may present in form of polycystic ovarian syndrome. And then later in life, towards the end of their reproductive phase, that is when they are about to go towards menopause, perimenopausal or menopausal issue, that's the time they face menopause. So as far as avoiding is concerned, there's nothing like you can avoid. If you have to get polycystic ovarian syndrome, since it also has a genetic basis, it will happen. Every woman will go towards menopause and therefore those issues will happen. But yes, how to recognize these symptoms early or what can one do कि थोड़ा इन चीज़ों से हमें राहत मिल सके. So therefore the early signs of PCOS, जब यंग लड़कियाँ पीरियड शुरू होने का टाइम है, पीरियड शुरू होते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पिंपल्स हो गए मुंह पे, वेट बढ़ रहा है या पीरियड इरेगुलर है. यूजली पेरेंट्स या मदर्स, आजकल ऑफ कोर्स अवेयरनेस इतनी है कि हम देख रहे हैं कि मदर्स भी बहुत जल्दी ले आती हैं लड़कियों को, जो अच्छी बात है. पर ये अर्ली साइंस हैं कि शायद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या हो. जैसे मुंह पे अधिक बहुत ज़्यादा पिंपल्स होना कुछ तो हद तक नॉर्मल है, प्यूबर्टी पे सभी लड़कियों को कुछ हद तक हो सकते हैं, पर बहुत एक्सेसिव होना, खास करके अगर उसके साथ हम देखते हैं कि बहुत एक्सेसिव बॉडी हेयर हो रहे हैं, स्पेशली मुंह पे एक्सेसिव फेशियल है, पीरियड्स इरेगुलर होना. शुरू के 1-2 साल पीरियड्स जब शुरू होते हैं तो पीरियड्स इरेगुलर होना कॉमन सी बात है. पर अगर 1 साल के पीरियड के बियॉन्ड भी पीरियड की रेगुलरिटी चल रही है या वेट गेन होता ही जा रहा है, तो ये अर्ली साइंस हैं कि शायद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या है. एंड इट्स बेटर दैट these girls are checked early rather than very late, because we can guide them with lifestyle changes, how to do the essential investigation and guide them how to avoid adding to their problems. There's no cure for PCOS, but like any other lifestyle disease, जैसे blood pressure है, शुगर है, एस्थमा है, ये सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं. सिमिलरली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको जल्दी रिकग्नाइज करके. सेम व्हेन द वुमेन इज अटेनिंग गोइंग टुवर्ड्स मेनोपॉज, अगेन पीरियड्स विल बिकम इरेगुलर. सो देयरफॉर वी एक बारी उस एज ग्रुप में हर लेडी को मैं कहूँगी कि एक हेल्थ चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप अपने लिए ज़रूर रखना चाहिए साल में एक बार, जिससे हम उन्हें इसके अर्ली सिम्टम्स के बारे में बता सकें और उनकी हेल्प कर सकें. परफेक्ट. तो मैम ने हमें बताया कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको लग रहा है कि आपको शायद इस तरीके की कोई इश्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले जाइए और अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए और प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए. राइट. सो मैम, एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, दैट इज़ ओबेसिटी. राइट. तो आजकल ऑब्वियसली हम सबको पता है दैट बाय 2035 हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ओबीस. ओबेसिटी बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल चेंजेस, ईटिंग पैटर्न्स. सो क्या ओबेसिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस का कोई कोरिलेशन होता है, और क्या ओबेसिटी को हम कंट्रोल करते हैं तो अपनी हेल्थ को और ज़्यादा बेटर रख सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स? बिल्कुल, ओबेसिटी और हेल्थ इश्यूज़ का बहुत कोरिलेशन है. Polycystic ovarian syndrome, we find that nearly 40-50% of the girls or women with polycystic ovarian syndrome will be overweight. If they are not grossly obese, they will be overweight. Okay. There can be thin and lean PCOS also, but otherwise, usually obesity is one of the symptoms. जैसे आपने खुद ही कहा कि आजकल का लाइफस्टाइल थोड़ा सेडेंट्री, स्ट्रेसफुल, बिंज ईटिंग, एक्सेसिव ईटिंग द रॉन्ग थिंग्स, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं.
Not only that, even intake of alcohol. The job hours are very odd. जब हम लड़कियों को OPD में मिलते हैं, हम कहते हैं एक्सरसाइज, उनके वर्किंग आवर्स ही इतने ऑड होते हैं कि इवन वी आर एट अ लॉस कि किस तरह हम उन्हें गाइड करें कि भाई आप एक्सरसाइज. सो अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई इज देयर अ कोरिलेशन बिटवीन, बिकॉज ओबेसिटी हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है और ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स का मेन कारण है. तो जब हम वेट लूज करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा और PCOS के सिम्टम्स बहुत हद तक कंट्रोल होंगे. अगर PCOS नहीं भी है और अगर ओबेसिटी है तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होती है, क्योंकि जो फैट टिश्यू है, जब कोई ओबीस है तो उसमें फैट टिश्यू एक्सेस में होगा, वो फैट टिश्यू भी हार्मोन्स बनाता है. सिर्फ ओवरीज ही नहीं हार्मोन्स बनाती, बट वो फैट टिश्यू भी हार्मोन्स बनाता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या और बढ़ जाती है. एक दूसरा स्टेज ऑफ लाइफ है जब हम फिर से ओबेसिटी ज़्यादा देखते हैं, जब मेनोपॉज का टाइम आता है. व्हेन द वुमेन आर एंटरिंग देयर मेनोपॉज, अगेन देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस एंड एट दैट टाइम अगेन वन टेंड्स टू पुट ऑन वेट. सो इसका एक ही आंसर है, सिर्फ एक, और उसका कोई उससे एस्केप नहीं है, और वो है लाइफस्टाइल चेंज, एक्सरसाइज in terms of weight, exercise as well as diet control. By diet control, I never ever let my patients go on a starvation diet and this intermittent fasting. It is more important to see how much they are eating से ज़्यादा what they are eating. Yes. They have to be careful. Yes. जब eating की इतनी options हैं आजकल, तो healthy eating की भी options हैं, चाहे घर पे हो चाहे आप सोशली खा रहे हो. आप क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं. बिंज ईटिंग रात को करेंगे, सोते टाइम करेंगे, तो नेचुरली समस्या बढ़ेगी. सो परफेक्टली मैम ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि ओबेसिटी इज कोरिलेटेड विद हार्मोनल इम्बैलेंस, हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. एंड आई गेस नॉलेज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. आप हेल्दी ईटिंग कीजिए, आप लाइफस्टाइल अच्छा फॉलो कीजिए, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत कीजिए, आप प्रॉपर वॉक कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए. यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ. दैट इज द topmost priority. I think. Add to this, I can only say that yes, women are working, they are on desk jobs. I just tell them that even at work, try to take the stairs. Every hour, get up and try to go around your office. Just उतना भी आप exercise अपनी daily routine activity में लाएंगे, even that will help. Yes, perfect. So something is better than nothing, I guess. मैम एक और इश्यूज़ है जिससे विमेंस बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं और शायद अपनी लेटर स्टेजेस के अंदर 50-55 में, दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस. जैसे ही थोड़ा सा मेनोपॉज शुरू होता है और थोड़ा सा 50-55 में बढ़ते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जॉइंट्स में पेन होना, हड्डियों में दर्द होना, ये कॉमन है महिलाओं के अंदर. तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसको हम अर्ली एज में इसको प्रिवेंट कर सकें? कुछ इस तरीके की चीज़ें करें, चाहे वो एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो ईटिंग पैटर्न्स हैं, क्या हम करें कि उसको थोड़ा सा हम प्रिवेंट कर पाएँ? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन हो जाता है. यंग एज में इतना नहीं पता चलता, बट एज द वुमेन गेट ओल्डर दे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द सिम्पटम्स. और सबसे बड़ी बात है द मॉर्बिडिटी रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज जितना ऑस्टियोपोरोसिस होगा उतना ही स्लाइटेस्ट ऑफ इंजरी, स्लाइटेस्ट फॉल विल टेंड टू कॉज फ्रैक्चर, जिसकी अपनी एक मॉर्बिडिटी है. और जब लॉन्गिटिविटी बढ़ गई है, वुमेन का लाइफ स्पैन बढ़ गया है, तो हम बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं. हिप फ्रैक्चर, रिस्ट का फ्रैक्चर, एंकल फ्रैक्चर, ये सब बहुत कॉमन हो गया है. एक बात हमें और याद रखनी है कि इंडियन विमेन, वी ऑल आर यूजली वेरी प्रोन टू विटामिन डी डेफिशिएंसी. जबकि विटामिन डी आप सबको ही पता होगा कि सनलाइट से मिलता है, जिसकी हमारे पास तो अबंडेंस है. बट डिस्पाइट दैट हमारी बॉडी उस सनलाइट को प्रोसेस नहीं कर पाती विटामिन डी बनाने. तो अगर हम विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं, हम देखते हैं कि 10 में से कम 4 या 5 लोग, वेदर men or women, will be deficient in vitamin D. So that is one thing that we should be careful about. Second, जितनी हम अपनी बॉडी को एजाइल रखेंगे, जितना हम एक्सरसाइज करेंगे from early age onwards, it helps to build up our core strength. Yes. It helps to build up our bones. मेनोपॉज के साथ विमेन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं और कोई हार्मोन्स की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. जो काम हार्मोन्स कर रहे थे वो काम और कुछ नहीं कर सकता. केवल लाइफस्टाइल चेंज, एक्सरसाइज, डाइट, सप्लीमेंट्स, ये चीज़ें हमारी मदद कर सकती हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस से हमें तकलीफ ना हो. इसलिए लेटर ऑन इन लाइफ, अर्ली ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ आवर विटामिन डी लेवल्स एंड डाइट.
बट लेटर ऑन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर मेनोपॉज कि हम अपनी डाइट का, सप्लीमेंट्स का ध्यान रखें और एक्सरसाइज। परफेक्ट। मैम मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस हमने डिस्कस कर लिया, और भी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एक और बहुत बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ अनीमिया इन फीमेल्स। और जब हम फीमेल से मिलती हूँ तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि 15 ईयर्स, बहुत यंग एज के अंदर भी महिलाओं को अनीमिया की प्रॉब्लम बहुत स्टार्ट हो जाती है, और ज़्यादातर लोग इसका डायग्नोसिस ही नहीं करवाते हैं, ये हमने ऑब्जर्व किया है। तो इसके साथ हम कैसे डील करें, इसके साथ जो घर पे जो फीमेल्स हैं वो कैसे डील करें? ये भी आपने बिल्कुल ठीक ही कहा। यंग गर्ल्स, यंग विमेन, एनीमिया अगेन इन इंडियन विमेन इज़ कॉमन। एक सबसे बड़ा रीज़न, चाहे मेन हो या विमेन हो, हमारी इंडियन डाइट in itself is not a very iron rich diet. Yes. And the way we cook Indian food, we more or less destroy all the iron that is there in the diet. We all have to realize कि अगर हम जितना भी आयरन हम डाइट में ले, केवल 10%, 10% of that iron is absorbed by the body. The rest is not absorbed. So you can imagine कि हमें कितना आयरन इंटेक चाहिए to meet our requirements. Yes. वो हम जिस तरह से खाना बनाते हैं और जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, जैसे कि चाय, हम लोग जैसे दाल, कॉम्बिनेशंस ऑफ अ फूड, इंडियन फूड, उसमें आयरन अब्जॉर्प्शन और रिड्यूस हो जाता है। हम लोग रॉ फूड बहुत कम खाते हैं। Yes. हम लोगों की डाइट में सब्जियां, वेजिटेबल्स हम लोग ज़्यादातर कुक करके उनके विटामिन्स और आयरन खत्म वी डिस्ट्रॉयड, हम नष्ट कर देते हैं। तो एक तो जितना हम रॉ वेजिटेबल्स खा सकेंगे, फ्रूट्स खा सकेंगे, इट विल हेल्प। सेकेंडली, the way we eat our food, थोड़ा diet alterations. The iron, we need to identify कि iron, especially vegetarians के लिए किस चीज़ में iron है. So iron rich fruit जैसे figs हैं, खजूर है, अनार है. मैं let's say the middle income group या lower income group, काले चने. काले चने is a very rich source of iron. Yes. So काले चने आप जिस भी फॉर्म में लें, उबाल के स्नैक की तरह लें, सूप लें. वेजिटेबल्स जितनी भी आप रॉ फॉर्म में ले सकेंगे। विंटर्स में देयर इज नो डर्थ ऑफ ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आप उनको जितना भी रॉ फॉर्म्स में, जैसे चटनी है या डो में, आटे में, रोटी की तरह से ले। सो वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट, राइट? अगेन प्रेगनेंसी इज वन टाइम व्हेन अगेन all women are universally recommended to take iron supplements after the 3rd month, because हमारे iron reserves ही नहीं होते. Indian women do not have iron reserves. So however healthy we may be, our hemoglobin is bound to drop. So therefore, during pregnancy, we would have to take iron supplements for sure. Again, I'll bring up this issue because it is very important in our Indian population. Thalassemia minor is as common as 15% in Indian population. And this is the time that we can identify. If we have checked the women before they get pregnant, good. Otherwise, in pregnancy, we should universally screen all women for thalassemia minor, because the only symptom, there will be no symptom of thalassemia minor. The only sign will be a low hemoglobin, which they are probably not even aware of. So therefore, वो भी हमें identify करना चाहिए. परफेक्ट। सो बहुत अच्छे से मैम ने हमको बताया कि कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और उनको बहुत इजीली हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, अच्छा खाना कंज्यूम कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा नॉलेज के साथ अपनी चीज़ों को ऑल्टर करके हम अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सो मैम, बिकॉज ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो घरों के अंदर रहती हैं और जो जॉब्स भी कर रही हैं, वो मैंने आजकल ऑब्जर्व किया कि न्यूट्रिशन, स्पेशली मिनरल्स जैसे कैल्शियम, सिलेनियम, ये सारे जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फीमेल्स के लिए, और ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं इनको कंज्यूम नहीं करती हैं प्रॉपर तरीके से, डाइट में भी कंज्यूम नहीं करती हैं प्रॉपर तरीके से, बैलेंस डाइट नहीं कंज्यूम करती हैं। सो न्यूट्रिशन का और मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है महिलाओं के अंदर स्पेशली? नहीं, देखिए, इट्स सिर्फ महिलाओं के लिए ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको हम बोलते हैं या मिनरल्स का रोल है, ऐसा नहीं है. Yes. It is as important for men as it is for Yes. women. But yes, we can, minerals and micronutrients are usually again by a healthy diet. Fruits, vegetables, जितनी raw form में होंगी, even for that matter, eggs, all kind of fish, Yes. chicken, the poultry, I mean the dairy products. Perfect. Everything will give us vitamins.
स्पेशली ऑल दीज काइंड ऑफ वेजिटेबल्स विच आर नॉट वेरी कॉमनली, लाइक जब हम बोलते हैं कलर्ड वेजिटेबल्स की कलरफुल चीज़ें खाइए, वो सब मिनरल रिच होती हैं। जैसे कि खाइए हमेशा मौसम की सब्जी। मैं किसी से ये नहीं कहूँगी कि आप समझ में गोभी खाओ या पालक खाओ, क्योंकि वो मौसम की सब्जी नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू गिव अस एनीथिंग। आप मौसम का फल खाइए, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ये सब रिच सोर्सेज ऑफ आयरन है, कोकोनट वाटर। सो अगेन ये भी हमें डाइट से ही लेना है। किसी वजह से अगर हम डाइटरी ये नहीं ले सकते अपनी डाइट में, देन वी नीड टू गो ऑन टू supplements. But yes, minerals now increasingly are being recognized as very important a part of a good health, so to say. परफेक्ट। सो मैम ने हमें समझाया कि किस तरीके से डाइट के थ्रू हम हर चीज़ को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, और अगर नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम सप्लीमेंटेशंस को अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं। मैम एक और इशू है, सडन हार्ट इश्यूज़ जो आजकल आ रहे हैं, सडन हार्ट अटैक्स आजकल देखने को मिल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत राइज हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आजकल मैं ऑब्जर्व करती हूँ महिलाओं में बहुत कम एज से ही शुरू हो गए हैं। सो उनको क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हम स्टेप्स लें कि उनको हम प्रिवेंट कर पाएँ? देखिए, कुछ हद तक ब्लड प्रेशर भी जेनेटिक है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी ब्लड प्रेशर होगा, और कभी कभी अर्ली एज से और नहीं तो एज रिलेटेड इनटू योर 40s या 50s ब्लड प्रेशर की समस्या होगी। मेनोपॉज के बाद ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह, क्योंकि ईस्ट्रोजन एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट देती है बॉडी को इन प्रॉब्लम्स से बचाने में, और वो हम आफ्टर मेनोपॉज ईस्ट्रोजन हम लूज़ कर देते हैं। तो आफ्टर मेनोपॉज ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। बट हमें ये याद रखना है कि अगर ब्लड प्रेशर यंग एज में हो गया, प्रिवेंशन का तो कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि हम उसे एज आई सेड कंट्रोल ज़रूर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन टच विद योर फिजिशियन सो दे कैन स्टार्ट मेडिकेशन अर्ली, क्योंकि यंग एज के ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि बॉडी के कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म इफेक्टिव नहीं होते, वो एज के साथ ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें विद आवर फिजिशियन सो दैट टाइमली ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड। एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस आर विदाउट सेइंग इट गोज दैट वी हैव। यस, सो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक चीज़ तो कॉमन ही रही है, दैट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। और अच्छा खाना खाइए, अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए, दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैम ने हमें पूरे सेशन में समझाई हैं। बट टू कंक्लूड द सेशन, मैम आई वुड लाइक कि आप कुछ कॉमन ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे फीमेल्स को बताएं जो वो कर सकती हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ। देखिए, जो मैं एक ही मैसेज कहना चाहूँगी कि यंग लड़कियां तो अपने आप खुद अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकती, तो मदर्स का या बाकी फैमिली मेम्बर्स का रोल है कि उनको कैसे गाइड करें। और आजकल की लिविंग में रिकग्नाइजिंग द चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, एडोलेसेंट हेल्थ केयर इशूज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हमें यंग लड़कियों को जो इनटू देयर टीन्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स, बहुत ज़रूरी है उनमें अवेयरनेस लाना रिगार्डिंग इवन देयर रिलेशनशिप विद द अपोजिट सेक्स। सो देयरफॉर कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिसेस, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की अवेयरनेस जो मदर्स को भी चाहिए, ये सब चीज़ें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सब यंग लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हें ये भाषण नहीं देना कि तुम गलत कर रहे हो, हमें ये बताना है कि आप इस सिचुएशन में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। सो देयरफॉर इस इशू को कार्पेट के नीचे शव कर देने से कुछ नहीं होगा, हमें ये इशू एड्रेस करना है, जो स्कूल्स में भी होना चाहिए और घरों में भी होना चाहिए। एज वी ग्रो ओल्डर हमें अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना है। साल में एक चेकअप, ज़्यादा नहीं पर एक चेकअप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने जैसे पहले भी कहा ब्रेस्ट कैंसर अब बड़ी यंग एज में हो रहा है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो और ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए एक दिन साल का रखिए कि आप ज़रूर अपना एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं वंस you've crossed 35, 40 for sure, right? And of course take care of your diet, and from the beginning if you are into an exercise mode तो बहुत ही अच्छा है, वो आदत आपके संग रहेगी। आजकल सिर्फ एलोपैथिक नहीं, आजकल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी बहुत रोल है, विच मीन्स एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा, डाइटरी चेंजेस, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। होम्योपैथी, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ साइंसेज इज इम्पॉर्टेंट। परफेक्ट। तो मैम ने हमें बहुत ही अच्छे से विमेंस डे के इस
सेशन के अंदर हमें समझाया कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकती हैं। आई गेस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ एजुकेटेड। आप अपनी चीज़ों को समझिए, अपनी बॉडी को समझिए, अपने हार्मोन्स को समझिए। प्लीज़ गो एंड विजिट योर डॉक्टर, योर गायनेकोलॉजिस्ट। आप उनसे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। जैसा मैम ने कहा कि आप साल में एक बार चेकअप ज़रूर करवाइए, क्योंकि उसी से आप चीज़ों को प्रिवेंट कर पाएंगे, राइट। और प्रॉपर अपनी डाइट को फॉलो कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ सप्लीमेंटेशंस को आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स जो हैं जब ये कंबाइन हो जाती हैं तो एक प्रॉपर हमें बॉडी को हेल्दी करने में हमारी मदद करती हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मैम कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, हमारे व्यूवर्स को दिया, और आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल सेशन उन्होंने हम लोगों के साथ शेयर किया, जिससे हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू मैम। वुड यू लाइक टू से सम लास्ट वर्ड? Message for all my women friends on this International Women's Day: empowerment through awareness, through knowledge, and through education. Remember that when you raise your voice and you rise for yourself, whether it's for your health issues or for your social rights, आप केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने आसपास की सब विमेन महिलाओं के लिए कर रहे हैं। So do rise for yourself. Thank you so much. विश यू वेल्थ।